ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ ਪਾਹ ਬਲੰਦੜੀ ਬੋਝ ਗਾਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਥਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿਅਰ ਨਖਿਆਤਰ ਗਗਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੁਣਾਮਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ।
समझण वास्ते कहा जाता है कि एक अमीर सेठ जो बहुत ज़्यादा दानी सी, मालक ने धन की दात दी हुई सी, पर धन के नाल नाल वो परमात्मा नूं भुलदा नहीं सी। वो समझदा सी कि दाता मैं नहीं, दाता वो परमात्मा है। हफ्ते दे विच उसने एक दिन रखिया होया सी जिस दिन वो दान करदा सी। थाल दे विच उसने हीरे रख लैने, मोती रख लैने, कीमती वस्तुआं रख लैनियां, ते मंगतियां ने, भिखारियां ने उस दे कोलों दान लैण दे वास्ते आउणा। बड़ी लंबी कतार लगी होया करदी सी, लाइन लगी होया करदी सी, ते भिखारियां नूं इंतजार होया करदा सी कि अज सेठ दे कोलों बहुत दान मिलना है। इस करके पहलां जाके खलो जांदे सन। अज जिस वक्त सेठ दे कोलों दान लैण वास्ते भिखारी गए ते उन्हां भिखारियां नूं दान लैंदियां एक सियाणा मनुख वेख रिहा सी। उसने वेख्या कि जिहड़ा सेठ है, सेठ अपने हथ दे नाल मोती दान करदा है, हीरे दान करदा है, कीमती वस्तुआं दान करदा है, पर जिहड़े देण वाले हुंदे ने वो तां हमेशा अपना सिर उच्चा करके संसार दे विच दिखाउंदे ने कि मैं बड़ा वड्डा दानी हाँ। यही कारण कि जिथे संसार दे विच उन्हां ने अपना नाम उच्चा करन दा यतन कीता है, उत्थे हौमै अते अहंकार करके धार्मिक अस्थानां दे विच भी उन्होंने वख-वख चीज़ों के उपर अपने नाम लिखाए हुए ने, पक्कियां ते नाम लिखाए हुए ने। गुरुद्वारा साहब के संगमरमर ते पत्थर ते नाम लिखाए हुए ने। जिहड़ी अंदर ईगो है, अहंकार है, वो खत्म नहीं हो रहा, अजे मरिया नहीं। पर जिहड़ा वो सियाणा मनुख वेख रहा सी, सेठ वाल वेख के बड़ा अचंभित होया, बड़ा हैरान होया कि किस तरह का दानी है जिस अंदर अहंकार नहीं है। ये दान ते करदा पर अपने सिर नूं झुका के दान करता है, सिर नूं उठा के दान नहीं करता। ते भिखारी आउंदे दान लैके खुश हो के चले जाते हैं। उस सियाणा मनुख कोल आया ते कोल आके उसने सवाल किया, कहन लगा सीखे कहा नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर उच्चा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। मैं हैरान इस गलों होया हाँ, ज्यों ज्यों तुहाडा हथ दान देण दे वास्ते उच्चा उठदा है, तुहाडियां ये अखां, तुहाडे ये नेत्र नीवे हो जांदे ने, कारण की है? अगों सेठ ने जवाब दिता, कहन लगा देवनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे तां ते नीचे नैन। मैं तो शर्मसार बड़ा हो गया, बहुत शर्मिंदा होया। ये जिन्ने भी भिखारी आए हुए ने सारे मैनू दानी समझ रहे ने कि मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, पर असलियत ये है मैं दानी नहीं, मैं खुद भिखारी हाँ। मैं उस वड्डे दाते दे कोलों मंगदा हाँ ते मंग के इन्हां नूं दे रहा हाँ। मैं तो एक जरिया हाँ, पर असल दाता वही है। कहन लगा देवनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे तां ते नीचे नैन। ये लोग मेरे उत्ते शंका कर लेंदे ने, मैं इस करके अपने नेत्रां नूं अखां नूं झुका लिया है। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया कि किते ये मैनू दाता ना समझ लैण। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बहुत सुंदर ख्याल पेश करते हैं। भाई वीर सिंह जी एक ऐसे कवि ने जिन्हां नूं संत कवि का खिताब हासिल है, उन्होंने कुदरत के कवि भी आख्या जाता है। भाई वीर सिंह जी अज एक पहाड़ के कोल चले गए ने ते पहाड़ के कोल जाके उन्होंने वेख्या है पहाड़ तो एक चश्मा थल्ले नूं आ रहा, वग रहा, पानी का चश्मा। ते भाई वीर सिंह जी ने वेख्या वो चश्मा जिहड़ा है थल्ले खेतां नूं वह तुरिया ते पास दे कोल लागे एक जंगल है। जंगल दे विचों कुछ जानवर आए ते उन्हां जानवरां ने आके उस चश्मे तो पानी पीता है। भाई वीर सिंह जी कहते हैं एक प्यासा किसान आया तो उस किसान ने आके भी पानी के झरने तो
पानी पीता है। उसने पशुओं की प्यास बुझा दी, इंसानां की प्यास बुझा दी। ते भाई वीर सिंह जी कहते ने, ऐ चश्मे, ऐ आबशार, तू बहुत वड्डा दानी है। तेरे को लोग आ रहे ने, जानवर आ रहे ने, तू सारियां दी प्यास बुझा देना है। तू सुक्कियां हुई फसलों नूं हरियां कर देना है। तेरे वर्गा कोई दानी नहीं है। पानी दे विचों आवाज़ आई, एक कवि की कल्पना है समझाउण वास्ते। वैसे पानी दे विचों कोई आवाज़ नहीं आउंदी। भाई वीर सिंह जी कवि ने, इस करके उन्होंने कल्पना दे नाल काव्य लिखिया है। भाई वीर सिंह जी कहते ने, पानी दे विचों आवाज़ आई। आवाज़ आई, कहन लगे बड़ा भोला है, बड़ा अनजान है, शायद तेनों पता नहीं है कि पानी मेरी मलकीयत कोई नहीं। ये जिहड़ा पानी है पाप बन के समुंदर दे विचों उठिया, वख-वख पानी दे सोमिਆਂ तो भाप बन के पानी उतान उठिया, बदल का रूह बन गया। तो जदों बदलों नूं हुक्म होया मालक दा, वो बदल आपस दे विच टकराए, बदलों दे विचों गर्जना पैदा हुई, आवाज़ पैदा हुई। जदों उन्हां बदलों दे विचों कणियां डिगियां, बरसात हुई, मीह पिया, ते वो पानी फिर पहाड़ां दे उपर आके डिग गया। सूरज की रोशनी दे नाल, बहुत ज़्यादा तापमान दे नाल जिहड़ा बारिश का पानी बर्फ बनया होया सी पिघल गया। पिघलन दे नाल मेरा जन्म हो गया, चश्मा बन गया, आबशार बन गया। मैं वह तुरया, मैं फसलों नूं पानी में दे दिता, जानवरों की प्यास बुझा दी, इंसानां की प्यास बुझा दी। पर सच जानी तू भुलेखा खा बैठा है कि मेरी मलकीयत कोई नहीं। तो भाई वीर सिंह जी कहते हैं, वो आवाज़ सी, आबशार आके सुन भोलिया, मैं ते वस्त ना काई, अरशों लैना ते फर्शी देना, रीत असाडी आई। ये तो लखां साल हो गए ने, हज़ारां साल हो गए ने, इसे तरह ये मर्यादा चली जा रही है। शायद तू ही अज वेख्या है, ये कोई नवी मर्यादा नहीं है, बड़ी पुरानी मर्यादा है। तो भाई वीर सिंह जी कहते ने, मैनू अजे तसल्ली नहीं हुई। मैं किसी तालाब दे कोल चला गया, सरोवर दे कोल चला गया, ते सरोवर ते जाके मैं बड़ा समा वेखदा रहा। एक नगर दे कोल सरोवर पैंदा सी, तालाब पैंदा सी। एक किसान ने अपने पशुआं नूं, अपने जानवरां नूं, डंगरां नूं घर तों छड्डिया है सरोवर दे विच पानी पियाउण वास्ते, नवाउण वास्ते। ते भाई वीर सिंह जी कहते हैं, वो जिहड़े पशु सन दौड़ते दौड़ते उस सरोवर दे कोल आए। उन्हां दे विच गावां सन, कुछ क मੱਝਾਂ सन। ते जदों उन्होंने पानी पीता, ते रज के पानी पीण तो बाद सरोवर दे वल पिठ करके वो गावां वापस चलियां गई। भाई वीर सिंह जी कहते हैं, मैं वेख रहा सा, वो किसान भी चला गया, वो जानवर भी वापस घर नूं पानी पी के नहा के चले गए। पर मैं अचानक वेख्या आकाश तो एक मोर आया। उस मोर ने उडारी मारदियां थले उतारा किया। ते जदों उस मोर ने सरोवर दे विचों पानी पीता, ते भाई वीर सिंह जी कहते हैं, मैं बड़ा हैरान होया, बड़ा आश्चर्य होया। किस गल्लों? कहन लगे पानी तो पीता, पर मोर पिठ करके वापस सरोवर दे वल नहीं गया। उसका सन्मुख हो के मूँह उसका सरोवर दे वल सी, ते आकाश दे विच दोबारा उड़ गया। भाई वीर सिंह जी कहते ने, पहला जानवर आए सन, ते जानवरां ने पिठ कीती सी, उस किसान ने पिठ कीती सी, पर सच जाणिओ मोर ने पिठ नहीं कीती। मोर सन्मुख हो के वापस गया। ते भाई वीर सिंह जी ने उत्थे काव उचारिया, कहन लगे, धाइयां आईयां गाइयां सर ते, पी पानी कंड मोड़ी, नचदा मोर आया जल पीता, कंड ना मोड़ी थोड़ी, तृप्त होए सन्मुख रह टुरदा, जल तकदा ते हटदा, शाला त्रे मोर दी देनी, पी रज तुद नो लोड़ी। कहन लगे, जे प्यास होवे ते प्यास मोर वर्गी होवे।
जे कोई मंगण वाला होवे ते मोर वर्गा होना चाहिए है। संसार दे विच इसे तरह के कई इंसान ने जेड़े कुछ जानवरां दी तरह ने। ते हैरान ना होना, ये मेरे बोल नहीं, धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते ने ये मनुखा का जन्म मिलिया होया, ये अखां ये नक ये शरीर मनुखा वाला मिलिया होया, पर सच जानियो आदतां सुभाव इन्हां दे विचार इन्हां दियां आदतां इन्हां दा बोलण दा लहजा जानवरां वाला है, पशुआं वाला है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ते भाई वीर सिंह जी कहते ने मोर की तरह भी कई इस तरह के भले मनुख ने जिन्होंने आप संत कह सकते हैं, महापुरख कह सकते हैं, जिन्होंने आप उच्ची अवस्था वाले आख सकते हैं कि चौथे पद दे विच ने, तुरिया अवस्था दे विच ने। भाई वीर सिंह जी कहते हैं इस तरह के मनुख बहुत घट नज़र आते हैं। ऐसे भाई वीर सिंह जी जो अपनी कविता दे विच समझा रहे ने, वही सानू गुरबाणी दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी समझा रहे हैं कि जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने एक सवैया उच्चारण किया है। उस सवैये दे विच महाराज जी कहते ने बड़े बड़े बली ने, बड़े बड़े ताकतवर मनुख ने जेड़े आप खुद जाके कोई कारज नहीं करते, कारज करने दे वास्ते उन्हां दा हुक्म ही काफ़ी है। इक्को हुक्म करते ने, नौकर जाके काम कर देंदे ने, जां उसदे हुक्म दा डर इन्ना ज्यादा है लोग उसदे हुक्म नूं सुन के कम जांदे ने, डर जांदे ने, कारज हो जांदा है। ते दसम पातशाह जी कहंदे ने ऐसे बड़े बड़े वड्डे योधे बली जिन्हां दी देशां विदेशां दे विच धाक है ते वो गल्लां दे नाल ही वड्डे वड्डे किले जित लैंदे ने। वड्डे वड्डे हाथियां नूं जो बहुत ताकतवर ने उन्हां नूं मसल के रख देंदे ने, जमीन दे विच लिटा देंदे ने। पर महाराज जी कहंदे तुहानूं पता है वो भी हथ जोड़ के परमात्मा दे कोलों मंगदे ने। हजूर ने सवैया उच्चारण किया वीर अपार बड़े बरियार, अविचार सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गढ़ान को तोड़ नहार, सुबातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक। फिर अखीर ते महाराज जी कहते जाचक अनेक, जाचक का अर्थ है मंगण वाले, अनेका ही मंगते ने भिखारी ने। सो एक देवैया पर देन वाला इको ही है। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। फिर महाराज अमृत बाणी दे विच बार बार फरमान दे के समझा रहे ने तू दाता दातार तेरा दिता खावना। फिर हजूर कई बार दद्दे अखर तो समझाउंदे ने दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। आपां इंसान हाँ, बार बार भुलां करदे हाँ, बार बार अपराध करते हाँ। साडे मन दे विच ख्याल कई बार आउंदे ने, कई बार चले जांदे ने। महाराज अमृत बाणी दे विच कहंदे ने कि दिन दे विच आपां अनेकां वारी भुल जाने हाँ। ते महाराज ने तो खुद आप कबूल किया है, बड़ी निमरता दे विच कहंदे ने सास सास हम भूलन हारे। ये सा आ रहे ने ते हर एक सवास दे विच मैं मालक दी याद नूं भुल जाना हाँ। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वेले दी एक घटना आउंदी है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी जो कि पंजाब दे राजे सन, वख वख इलाकियां दे उत्ते उन्होंने फतेह प्राप्त की, जित प्राप्त की। ते अज अपने लाओ लश्कर दे नाल शाही फौज दे नाल गढ़ शंकर दे इलाके नूं जितण वास्ते तुर पए ने। महाराजा रणजीत सिंह दी राजधानी पाकिस्तान दे विच होया करदी सी। लाहौर दे विच खालसा दरबार होया करदा सी ते अज वो लाहौर तो चले ने गढ़ शंकर दे इलाके नूं फतेह करन वास्ते, जिहड़ा कि हुशियारपुर दे नेड़े पैंदा है। आप जी ने सुनिया होवेगा। महाराजा रणजीत सिंह जी बड़ी तैयारी दे नाल चले ने।
घोड़ियां के उपर सवार हुई है फौज, नाल शस्त्र बस्त्र ने, नाल उन्हां दे खाण दे वास्ते पदार्थ ने, ते तैयार बर तैयार हो के अज चल पए ने। ते रस्ते दे विच कोई समा उन्होंने टिकाणा कीता, पड़ा कीता। ते जिहड़ा सामने डेरा दिखाई दे रहा है ये भाई साहब भाई कन्हैया जी की कुल दे विचों भाई दरबारी जी का डेरा है। भाई दरबारी जी जो कि सेवा पंथी ने, उन्हां दे डेरे दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उतारा कीता। ते जदों डेरे दे विच गए बड़ा स्वागत होया, फौज अंदर आई है। पहला जाके धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मत्था टेकिया, नमस्कार कीती है, परिक्रमा कीती। उस तो बाद भाई दरबारी जी नूं उन्होंने फतेह बुलाई है। ते फतेह बुलाउण तो बाद महाराजा रणजीत सिंह दी जिहड़ी सेना है, फौज है, प्रशादे दे नाल भाई दरबारी जी ने सेवा कीती है। भाई दरबारी जी बड़े शांत ने। महाराजा रणजीत सिंह जी कहन लगे कि भाई दरबारी जी मैं गढ़ शंकर के इलाके नूं जितण वास्ते तुरिया होया। तुसीं वाहिगुरू दे अकाल पुरख दे बड़े अजीज हो, बड़े प्यारे हो। जे तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे सन्मुख खलो के मेरी अरदास करदे हो, जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह धर्म के मार्ग के उपर चलता है, जे सच दे मार्ग ते रस्ते ते चलता है, ते महाराजा रणजीत सिंह की जित हो जाए, फतेह हो जाए। भाई दरबारी जी ने अरदास की है। महाराजा रणजीत सिंह भाई दरबारी जी डेरे तो चल पे ने, गढ़ शंकर दे विच प्रवेश कीते। उन्होंने इलाके दे उत्ते धावा बोलिया, हमला किया। वाहिगुरू की कृपा दे नाल महाराजा रणजीत सिंह की जित हो गई। महाराजा रणजीत सिंह नूं गढ़ शंकर के इलाके तो बड़े हीरे मोती मिले, सोना चांदी मिलिया, कई हाथी मिले, घोड़े मिले। अज उच्ची जयकारियां दे नाल बड़ी खुशी दे नाल फिर वापस लाहौर नूं जा रहे ने। ते जदों लाहौर नूं वापस जान लगे मन विच फिर ख्याल आ गया। कहन लगे पहला भाई दरबारी जी के डेरे दे विच रुके सां, उन्होंने अरदास की सी ते उन्हां दी अरदास नूं फल लगा सी, भाग लगा सी। वाहिगुरू ने मैनूं फतेह बख्शिश की है ते मेरा फर्ज बनता है घट्टो घट मैं भाई दरबारी जी का शुकराना करदियां धन्नवाद करदा वापस जावां। डेरे दे विच आ गए, हथ जोड़ के फतेह बुला के कहंदे ने तुहाडी कृपा दे नाल गढ़ शंकर दे इलाके ते जित हो गई है। मैं तुहाडा डेरा वेख रहा, तुहाडे डेरे दे विच बड़ी संगत आउंदी है। जे तुहाडी कोई इच्छा होवे लंगर दे वास्ते पदार्थ चाहिए होण, जे तुहानू हाथी घोड़े चाहिए होण, जे तुहानू धन चाहिए होवे, पैसा चाहिए होवे, हीरे मोती चाहिए होण, सोना चांदी चाहिए होवे, ते तुसीं मंग सकदे हो बेझिझक हो के। भाई दरबारी जी मुस्करा पे, उच्ची उच्ची फिर हसन लग पे। महाराजा रणजीत सिंह कहन लगे की होया? मैं ते तुहानू कुछ मंगण दे वास्ते क्या, इन्नियां कीमती वस्तुआं मेरे कोल ने ते तुसीं सुन के हस पए हो। ते अगों भाई दरबारी जी कहंदे मैं अज्ञानता ते हसिया, तुहाडे ते नहीं हसिया। किहड़ी अज्ञानता? कहन लगे अजे कल मेरे कोल आए सी, हथ जोड़ के भिखारियां दी तरह मंग रहे सी कि वाहिगुरू दे कोल हथ जोड़ के मेरी अरदास कर दिओ कि महाराजा रणजीत सिंह दी गढ़ शंकर दे इलाके ते उत्ते जित हो जावे। ते अज मैं वेख रहा पता नहीं भिखारी राजा किवें बन गया। चेता बड़ी छेती भुल गया है ते सानू भी बड़ी छेती चेता भुल जाता है। गुरुद्वारा साहब आके आपां कई बार पाठ भी करते हैं, अरदास भी करते हाँ, तो जदों कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, कोई उच्ची पदवी प्राप्त हो जाती है, नौकरी प्राप्त हो जाती है, फिर वाहिगुरू की याद भुल जाती है। सानू दुख दे विच तां परमात्मा याद रहिंदा है, पर सुख दे विच परमात्मा विसर जाता है। महाराज जी कहंदे ने कि तू सुख की तैयारी तो करदा है, पर दुख की तैयारी कोई नहीं करता।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਮਝੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪਰਫਿਊਮ ਇਤਰ ਆਦਿਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰ ਹੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹਿ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤਿਆ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਹੀ ਥਾਓ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੁੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੁਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਣਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਚੰਦੋਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ
कहने लगे ये सुंदर चंदुआ मेरे ऊपर नहीं लगेगा, मेरे तख्त के उपर नहीं शोभा देगा। ये सुंदर चंदुआ ते धन गुरु रामदास महाराज जी के दरबार दे शोभा देना चाहिए। ये उतार देवो। उन्होंने दरबार साहब जाके चंदुआ भेटा किया ते महाराज अमृत बाणी दे विच सानू समझा रहे ने कि ऐ मनुख उस वाहिगुरु दियां दातां नूं तू याद रख, उसनूं भुला ना। तेरा यह सुभाव है कि जे तेनू 9 वस्तुआं मिल गईयां, 10 वस्तुआं प्राप्त हो गईयां, फिर तेरे मन विच कामना आ गई, इच्छा आ गई कि ये वस्तु मैनू मिल जावे, नहीं मिली उसे दिन वाहिगुरु तो इनकारी हो गया, उस वाल पिठ कर लई। पर गुरु अर्जन साहब महाराज सुखमनी साहब की बाणी के अंदर कहते ने कि तेरा की जोर है, तेरी की ताकत है, तेरी की पाया। पहलियां जड़ियां 10 वस्तुआं तेनू मिलियां होईयां ने, जे वो भी तेनू ना मिलदियां की तू कुछ कर सकदा जी? साडा ना जन्म ते जोर, ना साडा मरण ते जोर, फिर अहंकार किस गल दा, हौमै किस गल दी, ईगो किस गल दी? महाराज अमृत बाणी दे विच कहंदे ने 10 वस्तु ले पाछै पावै। 10 वस्तुआं लै के तू अपने पिछे रख लईयां, भाव लुका लईयां, उन्हां दा नाम ही कोई नहीं लिया। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै। एक वस्तु जिहड़ी नहीं प्राप्त हुई, परमात्मा तो तेरा विश्वास उड़ गया। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। महाराज जी कहते ने इस करके जिस अगे कोई चारा ना होवे, उस अगे तू नमस्कार कर दे। जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां ने हमेशा वाहिगुरु दे भाणे नूं रजा नूं मन्निया ते हरेक भावें जीवन दे विच दुख आया, जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने जपजी साहब दे विच बयान कीता है, केतियां दुख भूख सद मार एह भेदात तेरी दातार। उस गल नूं प्रैक्टिकली गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने करके सानूं दिखाया है। केवल उन्होंने उपदेश नहीं दिता, दुनिया दे विच उपदेश करन वाले अनगिणत ने, बेअंत ने, तो गल्लां बहुत चंगियां करदे ने, धार्मिक हुंदियां ने, सिक्ख्यादायक हुंदियां ने, पर जीवन उन्हां दा वैसा नहीं है। यही कारण के भट्ट साहब जी अमृत बाणी दे विच कहंदे ने, साल एक भटकदे रहे, 1 वर्ष तक आपां इस तरह का कोई गुरु लभदे रहे जिस गुरु दे कोल सानू शांति मिल सके, परमात्मा दा मिलाप हो सके। पर वड्डे वड्डे जोगी तपी जपी जिन्हें भी ये सिद्ध सन, गल्लां करन वाले सन, उन्हां दे कोल बैठ के सुख नहीं मिलिया, शांति नहीं मिली। उन्हां दे बोलां दे नाल करनी मिलदी नहीं सी। उन्हां ने सवैया उचारण कीता है, कही वो संत हों टोल, साध बहुत तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुख होए पंडित मिठे, बरस एक हों फिर आओ, किन्ह न परचौ लाओ, कहते हो कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। इस करके कहते ने हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिन के गुण हों क्या कहो, गुरदई मिलायो भिखिया, जिव तू रखें तिव रहाऊं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के जीवन दे विचों वेखना है कि किन्ना उस दाते दा शुकराना करते ने, उस वाहिगुरू नूं किन्ना याद रखते ने। सुख दे विच आपां भुल जाने हाँ, दुख दे विच आपां आके अरदास करते हाँ, पर महाराज ने जिस वेले 6-7 पोह दी रात नूं आनंदपुर साहब दा किला छड्डिया ना, महाराज चलते चलते आज सरसा नदी पार करके जदों चमकौर दी गढ़ी दे कोल आए, महाराज दा उत्थे मुगलों दे नाल, पहाड़ी राजियां दे नाल बहुत वड्डा संसार दा उत्थे युद्ध होया, बहुत वड्डी उत्थे लड़ाई हुई। महाराज दे प्यारे उत्थे शहीद हो गए, अजीज सिंह शहीद हो गए। ते अज जदों रात हुई ना, रात ते महाराज अपने तंबू दे विचों निकल गए ने। मुसलमान शायर अल्लाह यार खां जोगी कहंदे ने 1.5 घड़ी रात गुजर गई सी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले या खुदावंद हूँ कुछ तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रूब रूब होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। महाराज ने कोई ताना नहीं दिता, कोई मेना नहीं मारिया कि पता नहीं तू हे परमात्मा मेरे कोल किस जन्म का किस समय का वैर लै रहा। महाराज हाथ जोड़ के बार बार शुकराना करते ने कि कल नूं चमकौर की धरती तो मैं सुरखरू हो के अपना मुख उजला करके चला जावांगा। फिर जदों अगला दिन आया ना, बहुत सारे महाराज दे सिंघां दे जत्थे शहीद हो गए ते सिंह कहण इस तो पहला महाराज ने अपने जान तो प्यारे साहिबजादियां नूं आवाज़ मारी। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, उन्हां नूं आवाज़ मार के कहंदे ने, बेटा जिहड़ा इस सामने मैदान दिखाई दे रहा है, ये अज दा मैदान तुहाडे वास्ते बनिया होया। ये मैदान इतिहासिक मैदान है। आउण वालियां कौमां, आउण वाले लोग याद करनगे कि इस मैदान दे विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी शहीद होए सन। महाराज ने आप उन्हां दे अज बस्तर सजाए ने, शस्त्र सजाए ने ते महाराज सिर दे उपर हथ रख के कहंदे ने, बेटा एक गल दा ख्याल रखी कि इस घर दी एक रीत है, ये घर कदे जुल्म दे अगे झुकिया नहीं। ते जदों पिठ दे विच छुरा वजे, कोई किरपान दा वार होवे ते उस मैदान दे विचों पिठ करके वापस नहीं आउणा। पहाड़ी राजे मुगल ये ना कहण जा के औरंगजेब नूं ये खबरां ना देण कि सिंह तां बड़े शहीद हो गए पर अपना परिवार उन्हां दा मुख मोड़ गया, मैदान दे विचों भज गया। महाराज जी कहंदे ने, मैदान दे विचों भज के वापस नहीं आउणा। फिर साहिबजादा बाबा जुझार सिंह नूं भी यही हुक्म कीता ते अल्लाह यारखां जोगी कहंदे ने, दुनिया दे विच मैं इस तरह का कोई पैगंबर नहीं वेख्या। अवतार बड़े हुए ने, इस तरह का अवतार कोई नहीं वेख्या, कोई पीर नहीं वेख्या, मैं इस तरह का गुरु नहीं वेख्या जिहड़ा अपने पुत्तरां नूं इह गल आखदा होवे कि बेटा अपने तन नूं मैदाने जंग दे विच कुर्बान तां कर दिओ पर पिठ दिखा के वापस ना आयो। ते यही कारण अल्लाह यारखां जोगी मुसलमान हो के भी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे साहिबजादियां दी वडियाई करदे ने, सिफत करदे ने ते ओ कहंदे ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे ए बोल सन, बेटा हो तुम्ही पंथ के बेड़े की खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह ताकते हैं सब खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। सतगुरु जी रहमत कर, जिस तरह महाराज जी ने सानू अमली तौर पर जीवन जियो के दिखाया है, आपां भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे नक्शे कदमां ते चलदे होए अपने जीवन नूं निर्वाह करन दा यतन करिए ते इस ख्याल नूं हमेशा याद रखिए, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा आप संगत दा तथा गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी का, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोट आन कोट शुकराना है, धन्यवाद है, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।